আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে বিষয়টা আমাদের কাছে এক অতি আশ্চর্য লাগছে। আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবী জুড়ে বহু সংগঠন সৃষ্টি হয় তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রথমে যখন সংগঠন সৃষ্টি হয় তার উপর কোনো বিধি নিষেধ থাকে না, হয়তো ভালো কাজ করার জন্যই দলটা সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়, জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়, দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেই দলটাকে সরকার বা যার শাসিত অধীনে সেই সংস্থা তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আমরা দেখতে পাই বহু জঙ্গি সংগঠন, ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন, লস্কর-ই তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন, ইসলামিক স্টেট অর্গানাইজেশন, বামপন্থী বহু সংগঠন আছে যারা নিষিদ্ধ, নকশালি সংগঠন, এবং খালিস্তানের পক্ষে যারা আন্দোলন করে তাদেরও বহু সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। সমস্ত সংগঠনগুলোই প্রথমে এদের চরিত্র সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের জন্যই সৃষ্টি হয়, কিন্তু তখন যখন সেই সংগঠন সমাজ কল্যাণ থেকে, রাষ্ট্র কল্যাণ থেকে ক্ষতি সাধন করতে থাকে, তখন তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার বা স্বশাসিত সংস্থা। আমার প্রশ্ন এখানটায় যে তৃণমূল কংগ্রেস নামক দলটি সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ভারতবর্ষ শাসনের জন্য, কিন্তু তাদের যে কার্যকলাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক, আজকে যে জঙ্গি সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে, যত অবৈধ কাজ করেছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি কাজ করেছে তৃণমূল অবৈধ কাজ করেছে। সমস্ত প্রায় জঙ্গি যোগ দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। আমরা দেখতে পাই যে যত বিস্ফোরণ ঘটেছে, এখানে আমি তালিকা কয়েকটা বলে দিচ্ছি, প্রমুখ তালিকাগুলো, যেটা হচ্ছে খাগড়াগড় থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত একাধিক জঙ্গি সংগঠন তারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। যেমন বর্ধমানের খাগড়াগড়, ভূপতিনগর, মেদিনীপুর এবং রাজকুমার মান্নার বাড়িতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে তৃণমূলের। এগরা বিস্ফোরণ, সন্দেশখালীর শেখ শাহজাহানের নেতৃত্বে যে অবৈধ কর্ম, রাষ্ট্রীয় মদত, এবং আমরা দেখেছি সর্বোপরি জাতীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টি, তিনি যখন আসেন তার ওপর কিভাবে সশস্ত্রভাবে অ্যাটাক হয়েছিল, এগুলো যেমন চলছে, তেমনি মুর্শিদাবাদের যে ঘটনাটা ঘটেছে, যে দাঙ্গার ঘটনা, সেখানে দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণও ঘটেছে মুর্শিদাবাদে। নদিয়া জেলায় ইদানিং দেখা গেছে যে একজন জনপ্রতিনিধি তৃণমূলের, যে কিনা ব্লকের সহসভাপতি, তিনি তার নিরাপত্তা রক্ষীকে গুলি চালিয়ে বসলেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিল, তিনি নিদান দিচ্ছেন পুলিশের ওপর বোমা মারো। এক আশ্চর্য, বিরোধীদের ওপর বোমা মারো, সাপের গর্তের বিষ ঢুকিয়ে মারো, বিরোধীরা সাপ তুলনা করছে, এইরকম নিষিদ্ধ কথাবার্তা বলছে। সর্বোপরি আরো আশ্চর্য লাগে যে সংগঠনটা আমরা জানি गणतांत्रिक, সেই সংগঠনের देखिए ये जितने संगठन अभी जो चल रहा है निषिद्ध माना किया, पहले एक भी संगठन निषिद्ध नहीं था। वो समाज के लिए, अच्छाई के लिए, काम के लिए पैदा हुआ, लेकिन बाद में जिस टाइम वो देश के खिलाफ, वो जंगी के साथ जुड़ने के बाद वो संगठन मना कर दिया, निषिद्ध कर दिया। तो इसलिए अभी जो बंगाल में टीएमसी है वो अच्छे के लिए, भलाई के लिए, जनता के लिए स्थापित हुआ, लेकिन अभी जो
बन गया, सारी जितने जंगी जो यहाँ टीएमसी का साथ है, जितने विस्फोट हुआ विस्फोट के साथ टीएमसी का लीडर जुड़ा है, और जितने मर्डर हुआ उनका साथ जुड़ा हुआ, जितना बलात्कार हो रहा है और डॉक्टर भी मारा उनका साथ टीएमसी है। और स्टेट ने उनका पनिशमेंट तो नहीं देते, ये उनका सहयोग कर रहा है, प्रशासन भी सहयोगिता कर रहा है। मुर्शिदाबाद दंगा के लिए जो हुआ है राष्ट्रीय स्टेट का मदद से ही हुआ, वहाँ का विधायक था, कमिश्नर था, आज रिपोर्ट निकाल दिया। तो इसलिए ये दल संतरवादी दल है, तो इसलिए इनका निषिद्ध संगठन बनाना चाहिए। ये जो चुनाव का सिंबल भी छीन लेना चाहिए। पैदा हुआ भारत का वो प्रोडक्ट है, वो क्यों हमारा मिलिट्री भेज के हमारा युवा ने जाकर उनका होकर लड़ाई करके वो पाकिस्तान से आज़ादी ले लिया। इसलिए वो देश जो अभी बचा है, आदमी जो है हमारे लिए है, तब भी हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों बोल रहा है? वो यहाँ का 80% जनता अभी भी हिंदू है, और उधर 95% माइनॉरिटी मुस्लिम है। इसलिए उनका मनसा ये पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान का खिलाफ हमेशा है। इसलिए हमारा तरफ से क्या बोलो, इसलिए वो जो हुआ आर्थिक अवरोध, कोई सरंजाम भेजने के मना कर दिया, स्थल बंद किया, सही किया मोदी। और एक तो लास्ट को बोला जे अभी रोकना चाहिए, तो इसलिए प्रमाण हो रहा है ममता का इशारा में इतने दिन चल रहा है। क्यों आज अभी जो हुआ सेंट्रल से धमकी खाने के बाद थोड़ा सुधारने के लिए ये बोल रहा है, लेकिन उनका मनसा जंगी का पक्ष में ही है। क्यों? उनका नारा भी जय बांग्ला है, तो इसलिए जय बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल नारा है, वो बांग्लादेश बनाने के लिए उनका ये मनसा है। इसलिए ये बोला, अभी डर के जो पुलिस को बोल रहा है वो परमानेंटली नहीं, मौका मिल जाएगा तो फिर जंगी का मदद करेंगे। वो यहाँ रोहिंग्या को मदद बाहर भाग देंगे तो इनका वोट भी नहीं रहेगा, वो हार जाएंगे चुनाव में, उनको भी नहीं करेगा असली। और ममता बनर्जी एक बात, ये टाइम हिसाब नेक्स्ट टाइम का हिसाब देना ये चाहिए, स्वाभाविक है। वो पिता के पास बेटा पैसा मांगते हैं तो पहले दिन का पैसा क्या किया वो पूछते हैं, तो हिसाब तो देना चाहिए। ये जनता का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा किसी को नहीं है, सेंट्रल को नहीं है, स्टेट का नहीं है, तो इसलिए जिम्मेदारी पब्लिक का साथ होना चाहिए। इसलिए सेंट्रल पैसा जो पहले जो दिया तो वो हिसाब मांगा, हिसाब नहीं दिया। यहाँ जितने करप्शन हुआ, काम भी नहीं हो रहा है, इसलिए पैसा नहीं दिया, नहीं देना चाहिए। क्यों? मोदी जी के नारा भी है, जो ना खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा। अब समय हो तपाईहरूको सङ्गीत र कलाको सपना पूरा गर्ने। रुट टु विङ्स, अ स्कुल फर कन्टेम्पोरेरी म्युजिक एन्ड आर्ट। रुट टु विङ्स लेबोङ नालबन गाउँमा एडमिसन सुरु भइसकेको छ। यहाँ गिटार, पियानो, भायोलिन, ड्रम्स, इन्डियन भोकल साथै फाइन आर्ट सिकाउने गर्छ। आजै नाम दर्ता गर्नुहोस् रुट टु विङ्स, जहाँ तपाईँको सृजनशीलता उडान भर्छ।